Good morning, children. Today we are going to read the chapter 2 in the book of English. The second book, the name of the book is A Pact with the Sun, and the chapter name is, as you can see, The Friendly Mongoose. This is the story about a farmer and his wife and a small child. They lived in a village. और अब वो कैसे एक mongoose, जिसे हम नेवला बोलते हैं हिंदी में, वो लेकर आता है, कैसे उसे पालता है और एट द लास्ट क्या होता है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. So, once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मर और उसकी वाइफ विलेज में रहते थे. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें अपने बेटे के लिए एक पेट लाना चाहिए. जब वो बड़ा होगा तो वो पेट उसका एक कंपेनियन यानी उसका एक साथी बन जाएगा. वाइफ को उसका आइडिया पसंद आता है. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम को जो किसान है, एक फार्मर है, वो एक बेबी मंगूस को लाता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो कहते हैं कि ये जो बड़ा होकर हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द बेबी इज देयर इन द गार्डन and the farmer and his wife is there and the baby mongoose is also there. Now what happened at the last in the next scene we are going to read. In the next scene there is both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to full its size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. दोनों बड़े होते हैं. मंगूस भी बड़ा होता है, बेबी भी बड़ा होता है. 5-6 महीने में मंगूस तो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, पर जो फार्मर का सन होता है वो अभी भी कार्डल यानी जिसमें बच्चे को सुलाते हैं उसमें सोने वाला ही होता है. 5-6 महीने में भी जो ह्यूमन बेबी है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in the little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. एक दिन किसान की वाइफ को जो है बाज़ार जाना होता है, तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाज़ार जाकर आ रही हूँ, बच्चा जो है वो झूले में सोया है, तो आप उसको देखना, क्योंकि मुझे इस मंगूस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. You need not be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as a baby, and they are the best of friends. You know. किसान कहता है कि तुम आराम से जाओ, ये बहुत ही प्यारा जानवर है, ये हमारे बेबी को एक अच्छा दोस्त है हमारे बेबी का, और तुम्हें नहीं पता ये उसकी देखभाल करेगा और मैं हूँ यहाँ पे, ऐसा वो कहता है. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field. And not far away, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. अब वाइफ चली जाती है, फार्मर के पास भी करने को कुछ नहीं होता है, तो वो तो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने खेत तक जाया हूँ, और ऐसा सोचकर वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और सोचता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा. अब इस बीच में क्या होता है? The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Blood, she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. अब जैसे ही फार्मर की वाइफ आती है शॉपिंग करके, हाथ में उसकी बास्केट होती है ग्रॉसरीज यानी घर के सामानों की, तो वो मंगूस को देखती है जो कि बाहर बैठा होता है, ठीक है, और उसी का वेट कर रहा होता है. वो उसको देखकर अंदर जाता है उसका वेलकम करने के लिए. फार्मर की वाइफ जैसे ही अंदर जाती है तो मंगूस को देखकर चिल्ला पड़ती है, ब्लड ऐसा बोलकर, और खून, मतलब उसके मुंह पे और उसके पंजों पर खून लगा होता है. यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, ऐसा कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. और वो कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं देखती, और सीधे जो उसके हाथ में बास्केट होती है वो उठाकर मंगूस के सर पर फेंक देती है. On the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. अब इतनी देर में मंगूस जो है बास्केट में दबकर मर जाता है और जो बच्चा होता है वो उसके पास जाती है देखने के लिए. The baby was fast asleep. बच्चा गहरी नींद में सोया होता है.
बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन वो देखती है कि वहीं पर जमीन पर एक काले रंग का सांप होता है जो कि खून से सना हुआ होता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज दैट वॉट had happened. She ran out looking for the mongoose. अब उसे समझ में आता है कि एक्चुअली बात हुई क्या होगी, और फिर वो मंगूस को देखने के लिए आती है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। ऐसा बोलती है कि तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। Who lay dead and still unaware of her sobbing. और अब तो मंगूस भी मर चुका होता है। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed her. अब किसान की वाइफ को दुख तो हो रहा होता है कि उसने बिना सोचे समझे मंगूस को मार दिया, उस पर पूरी बास्केट फेंक दी और वो मर गया, जबकि उसने तो उसकी हेल्प की थी। पर अब वो करती भी क्या, क्योंकि मंगूस तो मर चुका था। इतनी देर में उसका जो बच्चा होता है वो रोने लगता है, और वो वहाँ से उठकर अपने बच्चे को फीड कराने के लिए चली जाती है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई काम करें या करने के लिए जाएं तो हमें उससे पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच और समझ लेना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टोरी। हैव अ गुड डे।